So dear students, back once again with you for on another topic in electrostatics. And by now we have covered a lot of things in electrostatics without doing the problems. Don't worry, we will have separate videos for problems altogether. But first the concepts and basic theory in physics should be clear. Otherwise, doing problems is meaningless. So till now we have covered, for example, electrostatic force, electrostatic field, electric field intensity, then electric potential energy, electric potential, relation between electric field and potential. So all these are the properties: potential energy, potential, electric field intensity. And the basic of this chapter is, you can say, charges and Coulomb's law. So based on Coulomb's law, everything goes on evolving in this chapter. One small topic, and then we'll move to electrostatics part 2, that is what we call as Gauss law, and then capacitors. So these are the other topics, but the only thing that is remaining in this, the first part of electrostatics, is something which you call as electric dipole. So before we cover electric dipole, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और लिख देता हूँ. In the last video, which was very important like for all exams, मैंने आपको बताया था कि integration of electric field, that is, you can say minus E dot dr, basic formula was this, that was equal to change in potential. dV मतलब small change in potential, which is this, and when you integrate it, dV, and then you integrate minus E dr cos theta, then you get dV का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका एक फाइनल पोटेंशियल. देखिए dV मतलब क्या है, आप एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से दूसरे पे जा रहे हो, तो आपके पास आ जाता था Vf माइनस Vi, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dr cos थीटा. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्यों बता रहा हूं, बट देयर इज अ रीजन. अच्छा, ये आपका इंटीग्रेशन फॉर्म था. दूसरा फॉर्म मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ उल्टा होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज चेंज इन पोटेंशियल, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, दैट इज dV by dr, दिस आल्सो आई टोल्ड यू, इज माइनस E cos थीटा. एक्चुअली ये अगर हम इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो यहाँ इसी से हमारे पास आ जाएगा माइनस dV by dr इज E cos थीटा. सो देयर आई टोल्ड यू दैट potential gradient मतलब rate of change of potential with distance in any direction. भाई potential इस direction में भी change हो सकता है, so there would be a potential gradient in this direction. Potential can change in this direction also, so there can be a potential gradient in this direction. हो सकता है potential is only changing in this direction and not in this direction, so there is no potential gradient in this direction but potential gradient in this direction. Now in any direction, if you know the potential gradient, then you know the negative of the component of electric field in that direction. ये थोड़ा physics में digest करना sometimes feels difficult. E cos theta means the component of electric field in any direction. जैसे ये E है आपका और ये angle theta है, तो इस direction में E cos theta आपका क्या आ जाएगा, component of electric field intensity in this direction, and that is negative of dV by dr, मतलब negative of potential gradient in this direction is E cos theta. Similarly, इसको अगर आप इधर देखोगे तो क्या आएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट E sin theta. तो E sin theta क्या आ जाएगा, that would be the negative of potential gradient in this direction. Potential gradient means rate of change of potential with distance dV with respect to dr. So integration of electric field is potential you get, and potential differentiation gives you electric field. ये दो चीजें हैं, तो इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो. You can connect it. This is the beauty of recorded lectures, never possible in classes. If you miss, you miss. Okay, so आपको थोड़ा सस्पेंस लग रहा होगा कि बता इलेक्ट्रिक डाइपोल we had to teach and we came to this, but you will come to understand why I did this. अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आ जाते हैं. वो मैं बता देता हूँ आपको कि अब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेगेटिव, आई होप आपको दिख रहा है, नेगेटिव एंड a positive charge
separated by a small distance, separated by a small distance, थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड, एक नेगेटिव माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दिस इज नेगेटिव चार्ज, इसे मैं सर्कल बना देता हूँ, और ये जो दिस इज अ पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक एटम है, उसमें वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, आउटसाइड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में थोड़ा गैप बन जाए तो वो जो एटम होता है वो क्या बन जाता है, डाइपोल, बिकम्स अ डाइपोल, और उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल मतलब उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो आप याद रखिएगा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ऐसा, ये दिस इज द वर्ड गिवन इन फिजिक्स, फिजिसिस्ट ने बड़े खतरनाक वर्ड दिए हैं आपको ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बात हो रही, बट चीज़ सिंपल होती है अक्सर, और स्पेशली लाइक इन यूरोप मोमेंट मीन्स क्या होता है, मोमेंट मीन्स राइट नाउ आई एम हैविंग अ मोमेंट विद दैट पर्सन, दिस इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट, बट हियर दिस मोमेंट इज नॉट यूज्ड इन दैट सेंस ऑफ मोमेंट, दिस इज अ वंडरफुल मोमेंट, नॉट दैट मोमेंट, इट्स डाइपोल मोमेंट। तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए एक सिंबल भी दिया है, देखिए पी वेक्टर, उसको वेक्टर की तरह डिफाइन किया है, और वो होता है q इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप सोचोगे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ नहीं है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक वेक्टर जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, अगर मैं इसको वेक्टर की तरह लिख दूं तो क्या बन जाएगा, डी वेक्टर। तब आप ये चार्ज ले लीजिए कोई सा भी q एंड देन मल्टीप्लाइड विद डी वेक्टर, तो वो आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। सीधा सीधा अगर वैल्यू की बात करें, ज़्यादा इसको हम हिंदी में कहते हैं फजीता ना करें, तो हम कह देंगे डाइपोल मोमेंट इज चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वेरी सिंपली। इफ यू डोंट वांट टू बी कंफ्यूज्ड, टू लर्न इट इन अ सिंपल वे, जस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस डी। बट ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसलिए मैंने इधर से इधर बनाया। एक पहली बात तो ये आप ये समझ लीजिए। नाउ सेकंड थिंग टू अंडरस्टैंड इट, जैसे जस्ट लाइक फॉर पॉइंट चार्ज यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq upon r square, you have potential kq upon r, you have potential energy of 2 point charges or multiple charges. So similarly we can have different kinds of things for a डाइपोल ऑल्सो, मतलब डाइपोल के लिए भी हम बहुत सारी क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली ले जाऊंगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं दिस इज माय पॉलिसी फॉर राइट फॉर दीज वीडियोस नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स टू मच। तो ये डी जो है आपका डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है इस डाइपोल का, और यहाँ पे एक पॉइंट, एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने पी लिया, ये एंगल थीटा है, बड़ा स्केरी सा पिक्चर दिख रहा है, डोंट बी वरीड। देखिए ये डाइपोल है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, समझ लीजिए ये एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से कुछ दूर डिस्टेंस, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे मैं क्या निकालूँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूँ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूँ। मुझे लगता है निकालूँ क्यों, तो ये कुछ हाइयर कहीं पे यूज होता होगा जब हमारे व्हेन वी हैव दोज यू नो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि भाई ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स एंड डाइपोल ये इतने डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, कितना पोटेंशियल करेंगे। तो साइंटिस्ट्स ने देयर आर अ फ्यू थिंग्स, थोड़ा सा ये आपके यहाँ से हट रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ इसको। तो साइंटिस्ट्स व्हाट दे हैव डन इज दे हैव कैलकुलेटेड थिंग्स, आई थिंक सम ऑफ देम मे बी विदाउट एनी यूज, बट इन रियल लाइफ इट मे बी यूज समवेयर इन दोज लेबोरेटरीज एंड ऑल, के भाई एक डाइपोल है और इसका मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ सपोज, मतलब इन दोनों चार्जेस से मिला के यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। इस क्लास में मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यू लिख दूंगा इसकी, और वो जो मैं आपको बता रहा था तो मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ से जब ये R है तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं दिस डायरेक्शन, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शंस होती हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको मैं बोलता हूँ रेडियल, मतलब जब हम रेडियस के अलॉन्ग जानते हैं तो दिस डायरेक्शन इन फिजिक्स इज नोन एज रेडियल, और रेडियस के जो परपेंडिकुलर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं
टेंजेंट, ये आपको वैसे भी पता है, आप सर्कल का रेडियस लो और उसको परपेंडिकुलर लो, देन यू गेट अ टेंजेंट। ठीक है, देख लीजिए फिर से यहाँ से थोड़ा सा मिट रहा है, तो आई एम ब्रिंगिंग इट इन फोकस, फिर मैं इसको नीचे ड्रॉ कर लूँगा। ये रेडियल डायरेक्शन है और ये आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है, एंड आई विल रीड्रॉ इट, तो क्योंकि ये मेरे फ्रेम से बाहर जा रहा है एज आई कैन सी इट, तो आई एम इसको रीड्रॉइंग इट सो दैट इट्स विजिबल टू यू वंस अगेन। तो जल्दी से क्विकली लेट मी रीड्रॉ, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और मैंने यहाँ से एक पॉइंट पी लिया है, दिस इज माई रेडियल डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर दिस इज माई टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये आपके लिए एक लर्निंग है कि हम कभी कभी रेडियली और टेंजेंशियली वी कैन फाइंड फ्यू थिंग्स, यू कैन ट्रीट इट लाइक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेक्टर होती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, उसको हम बोलेंगे ई आर, मतलब रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, उसको हम बोलेंगे ई टेंजेंशियल। और आजकल जेई वगैरह में काफ़ी क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं पिछले कुछ सालों में, यू शुड बी क्लियर, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर मैथमेटिकल स्किल्स। तो ये आपका ई आर हो गया, दैट इज द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल। इसको मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ ई टी एंड ई आर, ये ई टी है, ई टेंजेंशियल, एंड दैट इज ई आर। तो मैं रेडियल और टेंजेंशियल वर्ड्स अभी हटा देता हूँ, वो आपको समझाने के लिए था। तो जब आप अब आप देखेंगे ई आर और ई टी, तो आप उसको याद रखिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंशियल, ई आर एंड ई टी। और जब मैं इसको पैरेललोग्राम पूरा कर दूंगा ऐसे, जैसा हम वेक्टर का सम करते हैं, तो ये जो आ जाएगा मेरा, ये वाला, ये इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ई आर, ये वाले आर से कंफ्यूज मत करना, ये है आपका ई कैपिटल आर, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। योर क्वेश्चन मस्ट बी कि सर हम निकालें कैसे, ये तो आपने लिख दिया ई आर ई टी, कैसे निकालें? तो देखिए, बिफोर आई टेल यू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इस पॉइंट पी के ऊपर आपको पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला बताता हूँ, एंड दैट इज के पी को थीटा एंगल ये वाला है, मतलब एक्सिस से के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हो गया सर ये कैसे आया? तो ये आ जाता है, इसका एक प्रूफ है, हम यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लेंगे और ये डिस्टेंस देख लेंगे, और इसका पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस, एंड इसका पोटेंशियल आएगा के माइनस के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस। और उसको हम थोड़ा थोड़ा, ये जो डी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी, उससे कनेक्ट करके फॉर्मूला आ जाएगा। P क्या है आप याद रखिएगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट व्हिच इज चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यू मे बी वॉन्डरिंग कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि एक्चुअली मैंने फिगर में बहुत बड़ा दिखाया डिस्टेंस और पॉइंट पास में, बट एक्चुअली पता है कैसे हो गए, ये बहुत पास हैं। ये देखिए, आपको बोर्ड में अलग भी नहीं दिख रहे होंगे, शायद दिख रहे हैं अभी, तो माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसा डाइपोल है, और जो मैं निकाल रहा हूँ वो यहाँ पे निकालता हूँ, मतलब ये डिस्टेंस बहुत दूर होता है इससे, दिस r is very big compared to this, तब ये फॉर्मूला आता है। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनता है, समथिंग लाइक दिस, बट दिखाने के लिए मैंने इसको बड़ा दिखा दिया, नहीं तो आपको फिगर ही नहीं दिखती। तो इस फिगर के लिए शायद ये फॉर्मूला ना सही हो, बट इस फिगर के लिए बिल्कुल सही बैठेगा ये फॉर्मूला। कैसे आता है ये बुक्स में गिवन है, और इसको हम कभी डेरिवेशन भी विल सी व्हेन वी आर डूइंग सम प्रॉब्लम्स। Then I will show you the calculations also. The students who don't want to just mess your minds up right now, just want to understand the concept, so you take it that the potential at this point because of this dipole is kp cos theta by r square. मैंने आपसे कहा था negative of potential gradient in any direction, negative of potential gradient in any direction is the value of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना? ये मैंने आपसे कहा था। अच्छा, अब आप इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ई आर, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ई आर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दिस डायरेक्शन, मतलब माइनस डी बाई डी आर, मतलब इस डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी वी बाई डी आर आएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
और इस डायरेक्शन में सिमिलरली हम निकालेंगे दूसरा वाला, इसको ET बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में E थीटा भी लिखते हैं इसको, वो आएगा माइनस D बाई, अच्छा ये dr था बट ये dr नहीं है, मतलब ये dr था इधर बट दिस इज नॉट dr, तो ये क्या है, इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सर्कल बना लो छोटा सा ऐसा, तो ये एंगल d थीटा ले लेते हैं, ये रेडियस हो गया, ये छोटा सा एंगल, तो ये आर्क ऑफ द सर्कल जैसा है, तो ये dr के बजाय यहाँ पे लिखते हैं r d थीटा इंटू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये d वैसे मैंने लिखा है बट ये पार्शियल डेरिवेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं दोनों को, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग इन दिस डायरेक्शन तो इधर का नहीं सोचते हैं, और जब यू आर डिफरेंशिएटिंग इन दिस डायरेक्शन, देखो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ थीटा को चेंज नहीं करेंगे, और जब हम इस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेंजेंशियल, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे आपको, उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये आप सिर्फ नोट कर लीजिए, तो इसका वैसे एग्जैक्ट लैंग्वेज इज रो बाई रो आर, इसको अगर और मैं अच्छे से लिखता तो आई शुड हैव रिटन लाइक दिस, क्योंकि फिर टेक्नीशियंस कहेंगे सर ने गलत लिखा था, तो दिस इज एक्चुअली रो बाई रो आर रो थीटा, मतलब दिस सिंबल इज नोन एज रो, तो आप इसको करेक्ट एग्जैक्टली ऐसे लिखिएगा, बट मैं यहाँ पे मैं यही सिंबल यूज कर रहा हूँ, d बाई डी आर ऑफ, ये मैंने क्या किया है माइनस d बाई डी आर ऑफ v इन दिस डायरेक्शन एंड माइनस d बाई दिस d ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब इंस्टेड ऑफ dr दिस इज r d थीटा, d बाई r d थीटा ऑफ दिस, तो ये जो है मुझे इस डायरेक्शन का फील्ड देगा, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दिस डायरेक्शन गिव्स मी ER एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दिस डायरेक्शन गिव्स मी ET। आज मेरा माइक कनेक्टेड नहीं है, सो प्लीज बियर विद द क्वालिटी ऑफ साउंड इन दिस वीडियो, इतनी अच्छी नहीं होगी बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके रिजल्ट लिख देते हैं हम जरा जल्दी से, तो ER क्या आता है आप देखिए, तो ये आ जाएगा आपका 2kp cos थीटा बाई r क्यूब, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप आसानी से लिख देंगे, और ET आएगा आपका kp sin थीटा बाई r क्यूब। देखिए यहाँ पे क्यूब आता है v में, यहाँ पे पोटेंशियल में स्क्वायर आता है, यहाँ पे kp cos थीटा ये सेम आ रहा है, 2 का फिगर आ रहा है सही। अब आपके पास तीन चीजें आ गई हैं, पोटेंशियल, ये स्केलर है याद रखिएगा। नाउ इफ समबडी आस्क यू बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पोटेंशियल, you should tell him shut up, potential has no direction because potential is a scalar quantity, but if somebody asks you what is the direction of ER तो कहिएगा radial in this direction, ET in this direction and ER इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, तो मैं ये पूरा मैथ्स वैसे तो इसको ऐसा लिखना चाहिए हमको, ER स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैथ्स, इजंट इट, इसका स्क्वायर करिए फिर इसका स्क्वायर, बट वो बहुत आसानी से आ जाएगा अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, तो सारी ये देखो पूरा टर्म तो कौन सेम है यहाँ पे, तो सीधा सीधा इतना टफ भी नहीं है, kp बाई r क्यूब कितना आ जाएगा 1 प्लस, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने आपको तीन ही चीजें मेन बताई हैं, याद कर लीजिएगा, वीडियो को छोटा रखेंगे, 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। एक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज स्केलर विच इज kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल, छोटे से डाइपोल का सेंटर एंड दैट पॉइंट, ये डिस्टेंस r है। थीटा इज द एंगल, मतलब ये एंगल आप यहाँ पे भी ले सकते थे इस पॉइंट को, तो थीटा 90 आ जाता। अब आप इसको घुमा घुमा के इफ यू टेक इट ऑन दिस पॉइंट हियर, तो थीटा आपका क्या आ जाएगा इधर 0, इफ यू टेक इट हियर थीटा विल बी 180 डिग्री। So theta is the direction of this point with respect to the dipole axis. Dipole axis मतलब ये वाला जो p वेक्टर का है, और p क्या है आपका चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो पहला पोटेंशियल का फॉर्मूला विच इज स्केलर, इसका डिफरेंशिएशन इन दिस डायरेक्शन गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस डायरेक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे हम dr नहीं लिखते हैं बट r d थीटा, क्योंकि ये r d थीटा है मेरा, दिस लेंथ इज r d थीटा। Differentiation in this direction gives me electric field in this direction. So one is electric field in this direction, electric field in this direction,
एंड दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी पूछते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है अल्फा, मतलब रिजल्टेंट इससे क्या एंगल बनाएगा, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, यू कैन डिवाइड ET by ER एंड यू कैन गेट tan अल्फा। वो बनेगा देखिए sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, tan of theta by 2, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। So tan of this angle is equal to tan of this angle upon half of that. That is the direction of this. So ये टॉपिक a little bit mathematical है, थोड़ा सा जहाँ से मिस हो रहा है तो देख लीजिए आप ऊपर का पार्ट, तो आपको दिख जाएगा व्हाट इज ER ET व्हाट इज रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मिस हो रहा था। आई थिंक यू हैव सीन, सो यू कैन जस्ट पीछे जाके देख लीजिएगा। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया है फॉर, देखिए इन दोनों का ही मैंने स्क्वायर करके वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए क्योंकि मिस हो रहा था वहाँ पे। ER और ET का रूट मैंने लिखा है जस्ट, विच इज KP by R क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और उसकी आपको डायरेक्शन भी मिल चुकी है यहाँ पे नीचे, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल एट पॉइंट P, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट पॉइंट P, इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट भी खत्म होता है। एक छोटा सा पार्ट और बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़।